विद्यार्थियों, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन। यह लेसन हाई स्कूल का है, जिसका सारांश इंग्लिश में और हिंदी में इसमें बताया है। ये रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन के द्वारा लिखा गया है। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेम ऑफ द करेक्टर्स, पहले उसके पात्रों की सूची है। कुछ पात्र हैं इसमें। रिचर्ड एच एवराइट, यह एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट है। नंबर 2 रिचर्ड एच एवराइट्स मदर है, वन हु ऑलवेज इंस्पायर्ड एवराइट टू लर्न। नंबर 3 है डॉक्टर अर्कवायर्ट, प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो, कनाडा। कनाडा की यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। नंबर 4 रिचर्ड ए वेहरर, एवराइट्स सोशल स्टडीज टीचर है। इसकी समरी जो इंग्लिश में है, द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन is about the development of a scientist, Richard Everett, who brought a revolution in the field of science by his invention of theory on how cells work. He was born in north of Reading, Pennsylvania, where there was no any work for him except to collect the things. He started to collect butterflies, rocks, fossils, and coins. He was so intelligent, and also his mother motivated him a lot. He collected 25 species of butterflies, but when he began to get bored, his mother gifted him a book, The Travel of a Monarch, written by Dr. Urquhart, in which the migration of butterflies to Central America was explained. In the book, the writer had suggested to take few butterflies as research and buy the butterflies again after few days. Everett found only two butterflies among all after few days. After that, he participated in a country science fair but lost the competition. Then they started experiment on the viral disease that killed monarch caterpillars and found that the disease was carried by beetles. He won the prize in this experiment, and after that he started experiment on the theory that how viceroy's butterflies copied monarchs and became less likely to be eaten by the birds. After that, he started experiment on an unknown insect hormone, which led his theory on the life of cells, but built a new instrument and experimented about the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. He won the first prize for this experiment and got a chance to continue his studies in Harvard Medical School. Everett got an idea by looking the hormone by X-ray photos, and then after he found that DNA was the substance in the nucleus of a cell that controlled heredity. During this theory, he also found the theory about cell life. He had been interested in science
Since he first began to collect butterflies and kept no time for him for other interests, Ebright also became a public speaker, champion, debater, a good canoeist, and an expert photographer. He made an example that hard work and the continuous attempt could open the door of सक्सेस फॉर एनीवन। इसका हिंदी सारांश है, इसमें रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का ये पाठ है, ये अध्याय है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के विकास के बारे में ये पूरी पटकथा इसमें कही गई है, जिन्होंने कोशिकाओं के काम करने के सिद्धांत पर अपने आविष्कार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। उनका जन्म नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसलेवेनिया में हुआ था, जहां उनके लिए कोई काम नहीं था सिवाय चीज़ों को इकट्ठा करने के। उसने तितलियों, चट्टानों, जीवाश्मों और सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वह बहुत बुद्धिमान था और उसकी माँ ने भी उसे बहुत प्रेरित किया था। उन्होंने तितलियों की 25 प्रजातियां एकत्रित की, लेकिन जब वह उगने लगे तो उनकी माँ ने उन्हें एक पुस्तक, डॉक्टर अर्कहार्ट द्वारा लिखी गई एक सम्राट की यात्रा, ऐसी एक पुस्तक थी जो उनकी माँ ने उन्हें भेंट की, जिसमें मध्य अमेरिका में तितलियों के प्रवास की व्याख्या की गई थी। पुस्तक में लेखक ने अनुसंधान के रूप में कुछ तितलियों को लेने और कुछ दिनों के बाद फिर से तितलियों को खोजने का सुझाव दिया था। एब्राइट ने कुछ दिनों के बाद सभी के बीच केवल 2 तितलियों को पाया। उसके बाद उन्होंने एक देश विज्ञापन मेले में भाग लिया, लेकिन प्रतियोगिता हार गए। फिर उन्होंने वायरल बीमारी पर प्रयोग शुरू किया, जिसने मोनार्क कैटरपिलर को मार दिया और पाया कि यह बीमारी बीटल द्वारा ली गई थी। ये जो बीमारी थी, जिस बीमारी से मोनार्क कैटरपिलर मर गए थे, ये बीमारी बीटल द्वारा हुई थी। उन्होंने इस प्रयोग में पुरस्कार जीता और उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत पर प्रयोग शुरू किया कि कैसे वायसराय तितलियों ने मोनार्क की नकल की और पक्षियों द्वारा खाया जाने की संभावना कम हो गई। उसके बाद उन्होंने एक अज्ञात कीट हार्मोन पर प्रयोग शुरू किया, जिसने कोशिकाओं के जीवन पर अपने सिद्धांत का नेतृत्व किया। उन्होंने एक नया वाद्य यंत्र बनाया और एक मोनार्क प्यूपा पर 12 छोटे सोने के स्थानों के उद्देश्य के बारे में प्रयोग किया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए पहला पुरस्कार जीता। उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिला। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अपनी पढ़ाई की। एब्राइट को एक्सरे तस्वीरों द्वारा हार्मोन को देखकर एक विचार मिला। जब उन्होंने एक्सरे किया, तस्वीरों को देखा, तो उनके मन में एक विचार आ गया था और फिर उसके बाद उन्होंने पाया कि डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में पदार्थ था। कोशिका के केंद्रक में एक पदार्थ होता है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इस सिद्धांत के दौरान उन्होंने कोशिका जीवन के बारे में भी सिद्धांत पाया। जब से उन्होंने पहली बार तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया और अन्य हितों के लिए उनके पास कोई समय नहीं था, तब से उन्हें विज्ञापन में रुचि थी। एब्राइट एक सार्वजनिक वक्ता, चैंपियन, डिबेटर, एक अच्छे कैनोनिस्ट और एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी बन गए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास किसी के लिए भी सफलता का द्वार खोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसलिए कि उन्होंने ऐसा अपने जीवन में देखा था कि कड़ी मेहनत से किसी का भी द्वार, जो सफलता का द्वार है, वो खुल सकता है। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, ऐसा उन्होंने पाया है, ऐसा उन्होंने कहा है।
छात्रों या कक्षा 10 की कहानी है जो यूपी बोर्ड में चल रही है।